Hello, Assalamualaikum. Alright, so today we are continuing with preparing master budgets. Now, in order to prepare the master budgets, I told you that you need to make the P&L, you need to make the SOFP, um, which is going to lead to a master budget. So, if you in this case, talking about the master budget, all of the details are going to be given to you for the upcoming period, and all you need to do is prepare your PNL and SFP. Okay. Now, budgetary control, there are two types of control. One is feedback control, the other is feed forward control. Master budget. Sorry, We need to do master budget. that is what I'm saying. That in master budget, all you need to do is um, make the financial statements, prepare the financial statements. We're going to do it later on, not right now, because over here we just have the test your understanding file. There's no illustration given. So I'm not going to go for the test your understanding because in that sometimes they have a lot of a lot of assumptions, and that is going to be done only when the answer is there. Like the test your understandings are based on a lot of assumptions in Kaplan or BBB book. Okay, so I do not generally prefer that the students do that. But when we do the kits, then we are going to come to the master budgets. Now, budgetary control, in that feedback control and feed forward control. Feedback control is when you compare the budget and actual performance in order to make sure that, okay, if they both are different, then I'm going to revise my plan, which means the budget is going to be edited and it is going to be brought in line with the actual performance. Okay. And in this case, what happens is that the budgetary control systems are generally feedback systems. Why are they generally feedback systems? Because over here they have mentioned that an expenditure budget is set, then a comparison is made with actual budget at the end of the budget period. So now, see, if the um, budget has been prepared and that is being compared by the actual budget, sorry, actual results, you can't change the actual results. That has already happened. The only thing that you can change is your budget, because budget was made based on estimates. Actual performance was actually done. So you can't change the actual performance, but you can definitely change the results, the budget results. Okay. Any confusion in this? No. Then we have feed forward control. This is used for planning. Feed forward control means that you are going to um, take charge of what is going to happen. So if you look over here, they are mentioning that an example of a feed forward control is cash budgeting, which will warn management if a cash surplus or deficit is expected. So what are they doing? They're not changing any budget or they're not changing any actual performance. They're just warning that this could happen, so that your actual performance is then changed in accordance with the indication. Any confusion in this? Should I move on? Okay. Now, budgetary control cycle. Control is defined as the process through which the management is going to take decisions and it is going to ensure that organization achieves its objectives. Now, the budgetary control cycle, in that we have budget agreed, we have expenditure incurred, we have differences between budget and actual analyze, and then we have to compute the reasons. So, first of all, you agree on the budget, then you start performing it.
you actually start giving the performance, you actually start spending money. Once the actual performance and the budgeted performance are in front of you, then you compare the two and you check that where is the difference coming. Then you analyze the reasons why the difference is going to be coming. Okay. And then you're going to revise for the next budget. Once you know the reasons, you're going to revise your next budget in order to bring it in line with the differences that have been computed. Okay. And feedback for revision of performance means that you go back in time and you check that, okay, because of these reasons, this and this expenditure was being incurred. So how to make that performance better. Now, whenever your budgeted expenditure and your actual expenditure are going to be different, you're going to get a variance. Could be an adverse variance, could be a favorable variance. Adverse variance means that you are going to probably have your costs more than your budgeted cost, which means if your actual cost is more than your budgeted cost, then you have adverse variance. Similarly, if you have less revenue in reality than what you expected, again, that is an adverse budget. Why is it different for cost and revenue? Because revenue is your income. So let's say you expected $1,000, but you only got $500. You're at a loss, right? But if you use the same example for cost, that okay, you thought of $1,000 of expenditure, but your expenditure ended up at $500. So you will be at an advantage. Are you clear? Yes. Okay. Fixed and flexible budgets. So a fixed budget is that budget that is produced for a single level of activity and it does not change. A fixed budget is not very much useful for controlling, but it is there just to show you how to plan through the different stages of budget preparation and then compare it with the original budget in order to check. But a flexible budget, its units are going to vary. Let's say a fixed budget is made up of 1,000 units, but in actual you ended up producing only 500 units. Now you can't compare the cost at 500 units with the cost at 1,000 units. Why? Because there's nothing in common. Your units are not in common, therefore the cost is also going to be very different. But in flexible budget, what needs to be done is that you get a range of output for which you can make your budgets so that the budgets become in line with the actual results. Now, obviously, not all the results of the budgets are going to be equal to the actual results, but at least the units would be the same. And since the units would be the same, it would be very easy for you to compare the costs. Okay? Any confusion? No, I didn't understand fixed budget. ओके भाई देखें फिक्स बजट में होता ही है कि अगर आपने एक दफा बजट बना लिया ना, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर आपकी चेंज भी होगी, आप बजट चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने 1,000 यूनिट्स बनाने का सोचा था, लेकिन किसी वजह से मार्केट की कंडीशन की वजह से आपने सिर्फ 500 यूनिट्स बनाए, ठीक है? तब 500 यूनिट्स पे तो कॉस्ट जाहिर है अलग होगी, क्योंकि जब आप यूनिट्स ही अलग बना रहे हैं तो कॉस्ट तो अलग ही होनी है ना। ये बात तो क्लियर है? हाँ। ठीक है। तो फिक्स बजट में ये होता है कि बजट को आप चेंज नहीं कर सकते। 1,000 यूनिट्स पे बजट बना हुआ है, आपको उसको 1,000 यूनिट्स पर ही रखना पड़ेगा। 500 यूनिट्स पे नहीं जा सकते उसके साथ। और जाहिर है कि आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी आप 1,000 यूनिट्स पे तो नहीं लेकर आ सकते, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस 500 यूनिट्स की थी। ठीक है?
लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में ये होता है कि लेट्स से आपने 1000 यूनिट्स का बजट बना लिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी 500 यूनिट्स के हिसाब से हुई, तो जो बजट है वो आप चेंज कर लें और उसको 500 यूनिट्स पे ले आए और फिर कंपेयर कर लें। ठीक है? एनी कंफ्यूजन इन दिस? So in flexible budget, changes can be made, and in एग्जैक्टली, fixed budget, no changes. एग्जैक्टली। अब इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है नोट करने के लिए? एक ये कि जो फिक्स बजट होता है ये स्टार्टिंग पीरियड से ही ऐसा ही होता है, आप इसको चेंज किसी सूरत नहीं कर सकते। सॉरी? Any budget can be converted to fixed flexible, right? For या example, materials budget, the cost of या materials can. ये वैसे ओवरऑल बजट की बात करें पूरे कंपनी के, बट यस इवन अदरवाइज। ओके, Yes. नाउ एक्चुअल रिजल्ट जो हैं वो फिर आप कंपेयर करते हैं बजटेड रिजल्ट से, तो फ्लेक्सिबल बजट में आपको थोड़ा बेहतर आइडिया मिल जाता है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है, लेकिन फिक्स बजट में तो आपको बेहतर आइडिया मिलेगा ही नहीं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है ना। अगर यूनिट्स कॉमन हो जाए तो कॉस्ट कंपेयर करना बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जब यूनिट्स भी कॉमन नहीं है, कॉस्ट भी डिफरेंट है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कैसे कंपेयर करेंगे। अब इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर मैं इसको समझाती हूँ। Miss what's forgot budgetary control statement. अभी देख लेते हैं उसको। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए that you have to make the flexed budget for 2500 units Flexed or budget? flexed budget Fixed, require, flexible, flexed. yes, Flexed, I don't know flexed. flexible, flexed, one and the same thing। Okay. लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको उन्होंने दी हुई है 3500, 4000, 4500, बट अदरवाइज यू नीड टू मेक 2500 यूनिट्स पे फ्लेक्स बजट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने सारी कॉस्ट को कंपेयर करना स्टार्ट कर देना है, उसको ले आना है 2500 यूनिट्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी, अगर आप देखें तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट चेंज हो रही है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो क्योंकि ये चेंज हो रही है, अब जाहिर है ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं हुई, ये वेरिएबल कॉस्ट ही हो सकती है, तो इसको डिवाइड करके देख लें, 7000 डिवाइड बाय 3500, हर 500 पे 1000 बढ़ रही है, तो हर 1000 पे 1000 बढ़ी है। I think 2000. यस, $2, $2 पर पर यूनिट हो गई ना, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2500 से तो आपके पास 5000 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट ऊपर करें। ये कॉस्ट हम लोग को दी गई है ना, 4000, 4500, 22,000. Then why are you finding the cost again? हमें उसने एक्चुअल की दी है, बजट की थोड़ी दी है।
बजट तो आपको बनाना है ना अभी 2500 यूनिट्स का। ओके इसीलिए तो फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके ओके। तो आप हमेशा ये करेंगे कि जब इतने सारी लेवल ऑफ एक्टिविटी दी हुई हो तो पहले चेक करें इसमें से कौन सी फिक्स कॉस्ट है। तो अगर आप देखें ये वाली चेंज नहीं हो रही टोटल में, ये फिक्स कॉस्ट ही होगी। ठीक है, उसके अलावा सारी चेंज हो रही है टोटल में। तो सबको पर यूनिट करके देख लें। मतलब जाहिर है आपको तीनों यूनिट्स पे पर यूनिट करने की जरूरत नहीं है। 7000 डिवाइड बाई 3500 कर लें, 9000 डिवाइड बाई 4500 कर लें। अगर ये कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रह रही है ना, तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, बात समझ आ गई? यस। ठीक है, अब इसी तरह लेबर का कर लें। 28,000 डिवाइड बाय 3500, 32,000 डिवाइड बाय 4000 और 36,000 डिवाइड बाय 4500। तो लेबर कॉस्ट भी आपके पास $8 पर यूनिट आ रही है। उसको मल्टीप्लाई कर दें 2500 यूनिट से तो 20,000 आ जाएगी। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 34,000, 36,000, 38,000 आपको दिया हुआ है। तो 34,000 डिवाइड बाई 3500 और 38,000 डिवाइड बाई 4500 करके देख लें। अब इसमें होगा ये कि आपके पास ना ही वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट में आ रही होगी, यानी पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट में नहीं आ रही होगी, और टोटल कॉस्ट भी कांस्टेंट में नहीं आ रही होगी। क्यों नहीं आ रही होगी? उसकी वजह ये है कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या सेमी फिक्स्ड या मिक्स्ड कॉस्ट है, जिसमें हम लोगों ने MA2 में भी देखा था कि उसमें हाई लो मेथड यूज होता था। ठीक है, तो इसमें भी हाई लो मेथड यूज करेंगे। पहले तो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी है उसको चूज कर लें। सबसे बड़ी लेवल ऑफ एक्टिविटी 4500 थी, सबसे छोटी 3500 थी। और इस पे जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है वो चूज कर लें। तो 38,000 माइनस 34,000 डिवाइड बाई 4500 माइनस 3500। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा $4 पर यूनिट। अब $4 पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें 4500 से, तो आपके पास आ जाएगा $18,000। और उसको सब्ट्रैक्ट कर दें टोटल कॉस्ट से, तो आपके पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर अगर देखें टोटल कॉस्ट 38,000 थी। पहले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट कर ली $4 पर यूनिट इंटू 4500 करके। क्यों 4500? या तो आप ये चूज करेंगे या ये चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं इन्होंने 4500 चूज किया। 18,000 टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, उसको 38,000 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास 20,000 आ जाएगी। एनी कंफ्यूजन इन दिस? ये आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। तो फिक्स प्लस वेरिएबल ये हो जाएगी 38,000 ओनली। बट द थिंग इज कि हमें तो वेरिएबल कॉस्ट अब निकालनी है 2500 के टर्म्स पे। तो 2500 इंटू 4 कर लें, आपके पास अमाउंट आ जाएगी। उसको ऐड कर दें आप 20,000 से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। बात क्लियर होगी? ऑल क्लियर? नो। 38,000 34,000 वे भी गेट। मैंने आपको ये बात MA2 में बताई थी कि हाइलो मेथड का फॉर्मूला ये होता है कि जब आप हाईएस्ट यूनिट सेलेक्ट करते हैं और जब लोएस्ट यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी लेते हैं। तो 3500 पे तो 34,000 कॉस्ट थी, 4500 पे 38,000 कॉस्ट थी, उसी को तो पिक किया है। ओके। फिर $4 पर यूनिट हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, उसको मल्टीप्लाई किया 4500 से, तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4500 यूनिट्स पे। क्योंकि आपके पास टोटल कॉस्ट भी तो सिर्फ 4500 यूनिट्स की थी या 3500 यूनिट्स की। तो जाहिर है जब आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4500 यूनिट्स पे निकाली है तो उसको कंपेयर भी 4500 यूनिट्स की ही टोटल कॉस्ट से करें।
ताकि आपके पास फिक्स कॉस्ट आ जाए 20,000 की। ठीक है, 2500 units है ना? आपकी आवाज कट रही है। 2500 units है ना? 2,500 यूनिट से करना चाहिए था, ये बोल रहे हैं। इधर हेलो, देखिए 2,500 यूनिट से तो हम बाद में करेंगे ना, पहले टोटल। ये सेमी फिक्स, सेमी वेरिएबल या मिक्स्ड कॉस्ट है, तीनों एक ही चीजें होती हैं, बट तीनों नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि जहन में बैठ जाए। और इसमें फिक्स का भी कंपोनेंट होता है, वेरिएबल का भी कंपोनेंट होता है। वेरिएबल तो आपने ढूंढ लिया 18,000, 4,500 इंटू 4 कर। लेकिन फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जब तक टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे, फिक्स कॉस्ट ही नहीं आएगी। और जब फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी तो 2,500 यूनिट्स पे सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करके क्या करना है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स पूरे तो नहीं आएंगे फिर। तो करेंगे 2,500 यूनिट से मल्टीप्लाई, लेकिन पहले फिक्स कॉस्ट तो फाइंड आउट कर लें। जब फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लें उसके बाद फिर आप $4 जो आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसको आप 2,500 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2,500 यूनिट्स पर आ जाएगी। और फिर उसको ऐड कर दें 20,000 से, तो 30,000 आपके पास टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ जाएंगे। बात क्लियर है? 4,500 यूनिट्स हैं। ये इसने डॉलर्स लिखा हुआ है लेकिन ये यूनिट्स हैं, तभी मैं इलस्ट्रेशंस और वो नहीं करवाती बुक से। आपने ऊपर तो देखा था 4,500 यूनिट्स हैं, ये देखें। क्लियर हो गया? आप यही चीज 3,500 यूनिट से भी कर सकते हैं, कि 3,500 यूनिट्स इंटू $4 किया। लेट मी चेक उसका क्या आंसर आता है। 14,000 आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है। इसकी जो टोटल कॉस्ट थी 34,000, उससे आपने सब्ट्रैक्ट किया 14,000 को, तो फिक्स कॉस्ट वही आएगी 10,000। ठीक है, ओके। नहीं, मुझे लगा पूरा ब्रेक ले रहे हैं। सॉरी। I thought, why are you reading 14,000? ओके, अच्छा इसमें एक और इन्होंने गलती की हुई है यहाँ पर। इन्होंने 38,000 minus 18,000, ओके, 4,500 into 4, that is fine। 3,500 into 4 जो है 14,000 होता है। तो ये इन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल में गलती ये की है कि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट नहीं रह रही। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अगर आप 3,500 इंटू 4 करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 14,000 आ जाती है, लेकिन उसी की टोटल कॉस्ट, हाँ सही है, ठीक है, माय बैड, 20,000 ही आ रहा है, मेरी कैलकुलेशन में एरर था। 20,000 3,500 यूनिट से भी आ रहा है और 4,500 यूनिट से भी आ रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? अब आपने करना ये है कि इस 20,000 को आप ऐड कर दें टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? 2,500 इंटू 4 कर दें, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, उसको ऐड कर दें 20,000 से, तो आपके पास 30,000 आ जाएगा। ऑल क्लियर? अब इसका बजटरी कंट्रोल सिस्टम स्टेटमेंट बनाना है। बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या होता है?
वही जो आपने ऊपर कंप्यूटेशन की है सारी अमाउंट्स की फॉर फ्लेक्स बजट ऑफ 2500, वो लिस्ट डाउन कर दिया। एक्चुअल यूनिट्स जो थे 2500, उस पर जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट थी उसको इंक्लूड कर दिया। यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करना है और कंपेयर कर दिया दोनों को। सो 5,000 माइनस 4,500, ये 500 फेवरेबल हो जाएगा। क्यों 500 फेवरेबल? क्योंकि जितना आपने एस्टिमेट किया था कि मेरी कॉस्ट होनी चाहिए एट 2500 यूनिट्स, उससे कम ही थी आपकी एक्चुअल कॉस्ट। तो आपके लिए फायदा हो गया ना, खर्चा आपका कम हो गया। ठीक है, आर यू फॉलोइंग? हेलो। इसी तरह डायरेक्ट लेबर को फ्लेक्स बजट और एक्चुअल को कंपेयर करें तो 20,000 माइनस 22,000, तो 2,000 एडवर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लेबर की कॉस्ट आपकी एक्चुअल में ज्यादा थी। मतलब इतना तो बजट ही नहीं किया हुआ था जितना खर्चा हो रहा है। अब ये 2,000 एक्स्ट्रा किसी और चीज के बजट में से निकाल के देने पड़ेंगे। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसी तरह एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये होती है आपकी बजटरी कंट्रोल स्टेटमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नाउ इन रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, स्टार्ट कर दूं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? ठीक है, फिर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। हमारा ये चैप्टर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया, इसको मंडे को इंशाल्लाह एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।